آیا محمد اظہرالدین شیخ فرام تعلیم روزگار سے اردو میگزین اورنگ آباد۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ النحل کا ترجمہ پڑھا تھا، اب ہم سورہ بنی اسرائیل کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 1۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اس کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 2۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ، کہ میرے سوا کسی کو کارساز بنانے والا نہ بناؤ۔ آیت نمبر 3۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، بے شک وہ ایک شکر گزار بندہ تھا۔ آیت نمبر 4۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں بتا دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین یعنی شام میں خرابی کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آیت نمبر 5۔ پھر جب ان میں سے پہلا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے نہایت زور والے، وہ گھروں میں گھس پڑے اور وعدہ پورا ہو کر رہا۔ آیت نمبر 6۔ پھر ہم نے تمہاری باری ان پر لوٹا دی اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تم کو زیادہ بڑی جماعت بنایا۔ آیت نمبر 7۔ اگر تم اچھا کام کرو گے تو تم اپنے لیے اچھا کرو گے، اور اگر تم برا کام کرو گے تب بھی اپنے لیے برا کرو گے۔ پھر جب دوسرے وعدوں کا وقت آیا تو ہم نے بندے بھیجے کہ وہ تمہارے چہرے کو بگاڑ دے اور مسجد یعنی بیت المقدس میں گھس جائیں جس طرح وہ اس میں پہلی بار گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا زور چلے اس کو برباد کر دے۔ آیت نمبر 8۔ بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہارے اوپر رحم کرے، زیادہ دیر نہیں کہ تمہارا رب تمہارے اوپر رحم کرے، اور اگر پھر تم وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے، اور ہم نے جہنم کو منکرین یعنی انکار کرنے والوں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے۔ آیت نمبر 9۔ بلا شبہ بنا کوئی شک کے یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اور وہ بشارت دیتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ آیت نمبر 10۔ اور یہ کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے یعنی اللہ نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 11۔ اور انسان برائی مانگتا ہے جس طرح اس کو بھلائی مانگنا چاہیے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ آیت نمبر 12۔ اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو، اور ہم نے ہر چیز کو خوب کھول کر بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 13۔ اور ہم نے ہر انسان کی قسمت اس کے گلے کے ساتھ باندھ دی ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا۔ آیت نمبر 14۔ پڑھ اپنی کتاب، آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ آیت نمبر 15۔ جو شخص ہدایت کی راہ پر چلتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے چلتا ہے، اور جو شخص بے راہی کرتا ہے وہ بھی اپنے ہی نقصان کے لیے بے راہ ہو جاتا ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم کبھی سزا نہیں دیتے جب تک کہ ہم کسی رسول کو نہ بھیجیں۔ آیت نمبر 16۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوش عیش لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں، تب ان پر بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اس بستی کو تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 17۔ اور نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، اور تیرا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے کے لیے اور ان کو دیکھنے کے لیے۔ آیت نمبر 18۔ جو شخص عاجلہ یعنی دنیا کو چاہتا ہو اس کو ہم اس میں سے دے دیتے ہیں جتنا بھی جس کو دینا چاہتے ہیں، جتنا بھی ہم یعنی اللہ جس کو دینا چاہتے ہیں، پھر ہم نے یعنی اللہ نے اس کے لیے جہنم ٹھہرا دی ہے، وہ اس میں داخل ہوگا بدحال اور راندہ ہو کر۔ آیت نمبر 19۔ اور جس نے آخرت کو چاہا اور اس کے لیے دوڑ کی جو کہ اس کی دوڑ ہے اور وہ مومن ہو تو ایسے لوگوں کی
कोशिश मकबूल होगी, कबूल होगी। आयत नंबर 20 हम हर एक को तेरे रब की बख्शिश में से पहुंचाते हैं, उनको भी और इनको भी और उनको भी, और तेरे रब की बख्शिश किसी के ऊपर बंद नहीं। आयत नंबर 21 देखो हमने यानी अल्लाह ने उनके एक को दूसरे पर किस तरह फौकियत दी है, और यकीनन आखिरत और भी ज़्यादा बड़ी है दर्जे के एतबार से और फजीलत के एतबार से। आयत नंबर 22 तो अल्लाह के साथ किसी और को माबूद ना बना, तो अल्लाह के साथ किसी और को माबूद इबादत के लायक ना बना, और वरना तू मजमूम और बेकस होकर रह जाएगा। आयत नंबर 23 और तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम उसके सिवा किसी और की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर वो तेरे सामने बुढ़ापे को पहुँच जाएं, उनमें से एक या दोनों, तो उनको उफ़ ना कहो और ना उनको झिड़को, और उनसे एहतराम के साथ बात करो। आयत नंबर 24 और दोनों और उनके सामने नरमी से आजिज़ के बाजू झुका दो, और उनके सामने नरमी से अज्ज के बाजू झुका दो, और कहो कि ऐ रब इन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने मुझे बचपन में पाला। रब्बिरहमनी कमा रब्बयानी सगीरा। आयत नंबर 25 तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है, अगर तुम नेक रहोगे तो वो तौबा करने वालों को मुआफ़ कर देने वाला है। आयत नंबर 26 और रिश्तेदारों को उसका हक़ दो, और मुस्किनों को और मुसाफिरों को, और फजूल खर्ची ना करो। आयत नंबर 27 बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं, और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। आयत नंबर 28 और अगर तुमको अपने रब के फजल के इंतज़ार में जिसकी तुम्हें उम्मीद है उनसे एराज़ करना पड़े, दूरी इख्तियार करना पड़े, तो तुम उनसे नरमी की बात कहो। आयत नंबर 29 और ना तो अपना हाथ गर्दन से बांध लो और ना उसको बिल्कुल खुला छोड़ दो कि तुम मलामत ज़दा और आजिज़ बनकर रह जाओ। आयत नंबर 29 फिर से और ना तो अपना हाथ गर्दन से बांध लो और ना उसको बिल्कुल खुला छोड़ दो कि तुम मलामत ज़दा और आजिज़ बनकर रह जाओ। यानी ऐसा भी नहीं है कि हाथ बिल्कुल तंग कर लेना, या फिर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल इतना लुटा देना कि खुद ही आजिज़ बनकर रह जाए। आयत नंबर 30 बेशक तेरा रब जिसको चाहता है ज़्यादा रिस्क देता है, और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक वो अपने बंदों को जानने वाला, देखने वाला है। आयत नंबर 31 और अपनी औलाद को मुफलिसी के अंदेशे से कत्ल ना करो, हम उनको भी रिस्क देते हैं और तुमको भी, बेशक उनको कत्ल करना बड़ा गुनाह है। आयत नंबर 32 और ज़िना के करीब ना जाओ, वो बेहयाई है और बुरा रास्ता है। आयत नंबर 33 और जिस जान को खुदा ने मोहतरम ठहराया है उसको कत्ल मत करो मगर हक़ पर, और जिस शख्स को नाहक कत्ल किया जाए तो हमने उसके वारिस को इख्तियार दिया है, बस वो कत्ल में हद से ना गुजरे, उसकी मदद की जाएगी। आयत नंबर 34 और तुम यतीम के माल के पास ना जाओ मगर जिस तरह के बेहतर हो, यहाँ तक कि वो अपनी जवानी की उम्र को पहुँच जाए, और अहद को पूरा करो, बेशक अहद की पूछ होगी। आयत नंबर 35 और जब नाप कर दो तो पूरा नापो और ठीक तराजू से तोल कर दो, ये बेहतर तरीक़ा है और इसका अंजाम भी अच्छा है। आयत नंबर 36 और ऐसी चीज़ के पीछे ना लगो जिसकी तुमको खबर नहीं, बेशक कान और आँख और दिल सबकी आदमी से पूछ होगी। आयत नंबर 37 और ज़मीन में अकड़ कर ना चलो, तुम ज़मीन को फाड़ नहीं सकते और ना तुम पहाड़ों की लंबाई को पहुँच सकते हो। आयत नंबर 38 ये सारे बुरे काम तेरे रब के नज़दीक नापसंदीदा है। आयत नंबर 39 ये वो बातें हैं जो तुम्हारे रब ने हिकमत में से तुम्हारी तरफ वही की है, और अल्लाह के साथ कोई ना माबूद बनाना, और अल्लाह के साथ कोई और माबूद ना बनाना, इबादत के लायक ना बनाना, वरना तुम जहन्नुम में डाल दिए जाओगे मलामत ज़दा और रांदे होकर। आयत नंबर 40 क्या तुम्हारे रब ने तुमको बेटे चुनकर दिए और अपने लिए फरिश्तों में से बेटियां बना ली?
बेशक तुम बड़ी सख्त बात कहते हो। आयत नंबर 41 41, और हमने उस कुरान में तरह तरह से बयान किया है ताकि वो याद दहानी हासिल करें, लेकिन उनकी बेजारी बढ़ती ही जाती है। आयत नंबर 42 42, कहो कि अगर अल्लाह के साथ और भी माबूद यानी इबादत के लायक होते जैसा कि ये लोग कहते हैं, तो वो अर्श वाले की तरफ ज़रूर रास्ता निकाल दे। आयत नंबर 43 43, अल्लाह पाक और बरतर है उससे जो ये लोग कहते हैं। आयत नंबर 44 44, सातों आसमान और ज़मीन और जवान जो सातों आसमान और ज़मीन और जो इनमें है सब उसकी पाकी बयान करते हैं, और कोई चीज़ ऐसी नहीं जो तारीफ़ के साथ उसकी पाकी बयान ना करती हो, मगर तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझते। बिलाशुबा बिना शक के वो इल्म वाला बख्शने वाला है। बिलाशुबा वो इल्म वाला बख्शने वाला है। आयत नंबर 45 45, और जब तुम कुरान पढ़ते हो तो हम तुम्हारे और उन लोगों के दरमियान एक छुपा हुआ पर्दा हायल कर देते हैं जो आखिरत को नहीं मानते। आयत नंबर 46 46, और हम उनके दिलों पर पर्दा रख देते हैं कि वो उसको ना समझे, और उनके कानों में गिरानी पैदा कर देते हैं, नागवारी पैदा कर देते हैं सुनने में जो बुरी लगती है उन्हें। और जब तुम कुरान में तन्हा अपने रब का जिक्र करते हो तो वो नफ़रत के साथ पीठ फेर लेते हैं। आयत नंबर 47 47, और हम जानते हैं कि जब वो तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं तो वो किस लिए सुनते हैं, और जब कि वो आपस में सरगोशियाँ करते हैं आपस में, ये जालिम कहते हैं कि तुम लोग तो बस एक सहर ज़दा आदमी के पीछे चल रहे हो, यानी जिस पर जादू हो गया है ऐसे आदमी के पीछे चल रहे हो। आयत नंबर 48 48, देखो तुम्हारे ऊपर वो कैसी कैसी मिसालें चुस्त कर रहे हैं, ये लोग खोए गए वो रास्ता नहीं पा सकते। आयत नंबर 49 49, और वो कहते हैं कि क्या हम हड्डी और रेज़ा हो जाएंगे, तो क्या हम असर नौ उठाए जाएंगे। आयत नंबर 50 50, कहो तुम पत्थर या लोहा हो जाओ। आयत नंबर 51 51, या और कोई चीज़ जो तुम्हारे ख्याल में उनसे भी ज़्यादा सख्त हो। फिर वो कहेंगे कि वो कौन है जो हमको दोबारा ज़िंदा करेगा, तो तुम कहो कि वही जिसने तुमको पहली बार पैदा किया है। फिर वो तुम्हारे आगे अपना सर हिलाएंगे और कहेंगे कि ये कब होगा, कहो कि अजब नहीं कि उसका वक्त करीब आ पहुँचा हो। आयत नंबर 52 52, जिस दिन खुदा तुमको पुकारेगा तो तुम उसकी हम्द करते हुए उसकी पुकार पर चले आओगे, और तुम ये ख्याल करोगे कि तुम बहुत ही थोड़ी मुद्दत रहे, बहुत कम रहे। आयत नंबर 53 53, और मेरे बंदों से कहो कि वही बात कहे जो बेहतर हो। शैतान उनके दरमियान फसाद डालता है, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। आयत नंबर 54 54, तुम्हारा रब तुमको खूब जानता है, अगर वो चाहे तो तुम पर रहम करे या अगर वो चाहे तो तुमको अज़ाब दे, और हमने यानी अल्लाह ने तुमको उनका ज़िम्मेदार बनाकर नहीं भेजा। आयत नंबर 55 55, और तुम्हारा रब खूब जानता है उनको जो आसमान और ज़मीन में है, और हमने यानी अल्लाह ने बाज़ नबियों को बाज़ पर फजीलत दी है, और हम यानी अल्लाह ने दाऊद को ज़ुबूर दी, आसमानी किताब ज़ुबूर दी। आयत नंबर 56 56, कहो कि उनको पुकारो जिनको तुमने खुदा के सिवा माबूद यानी इबादत के लायक समझ रखा है, वरना तुम आयत नंबर 56 फिर से, कहो कि उनको पुकारो जिनको तुमने खुदा के सिवा माबूद यानी इबादत के लायक समझ रखा है, वो न तुमसे किसी मुसीबत को दूर करने का इख्तियार रखते हैं और ना वो उसको बदल सकते हैं। आयत नंबर 57 57, जिनको ये पुकारते हैं